Guys, Gargantuan Personality Advantage welcomes you all, and today our module is Law of Attraction. ये जो वर्ड्स हैं, 3 वर्ड्स हैं, बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, बहुत लोगों को पता है, बहुत लोगों को थोड़ा पता होगा, बहुत लोगों को पूरा पता होगा। लेकिन आज हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेके बहुत इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करने वाले हैं। तो उससे पहले एक बार आप लोगों से मैं पूछना चाहूंगा कि व्हाट डू यू फील अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो चलिए सबसे पहले देवाशीष जी से ही पूछ लेते हैं। देवाशीष जी, हैव यू हर्ड अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन? माय गॉड, देन today you are going to learn something really outstanding. Yes. Maybe the bestest one of your tenure with IDQ. Yeah, Rishita, have you heard about law of attraction? Yes, sir. Okay, so what is law of attraction? So as per law of attraction, law of attraction, all things are. I don't know. It is law of attraction or something else. That is, all things are attracted by whatever we want. It is attracted by itself. Okay, very good. So, Kumari Sakshi, any idea about this? No, sir. कोई कुछ लोग ट्राई भी नहीं कर रहे हैं. That is the problem. Please, yeah, Shivangi, any idea about law of attraction? Sir, I have seen a lot of videos in YouTube about law of attraction, and I Okay. really follows that. I don't know why I'm following, but I do follow this law of attraction. It means that whatever you want in your life, you get attracted to it. I mean, if suppose I want to become a professional singer, or I want to be a famous singer, I would imagine, I would affirmate everything, whatever the things which relate to that profession. Means in 24 hours I'll be thinking about that particular thing only. That will attract me in coming future. I mean, it will convert into reality. That is called law of attraction. Okay, you know many things about law of attraction. Yeah, Soni ji, any idea about law of attraction? No, sir. Okay. So let's go and learn something which is very interesting, guys. I'm asking to only few people whom I can see, so that I get to know something about it. Hi, Jaya. Good evening. Good evening, sir. How are you? All good? Yes, sir. So, have you heard about law of attraction? Sir, I guess law is something tell about the rules, and attraction which attract something else, like a positive or negative thing, Okay. I believe. Okay, guys, you all are right. Yeah, I have not asked Shraddha. Sorry, Shraddha, I somehow missed you. Yeah, Shraddha, any information about law of attraction? I don't know, but I think so कि हम लोग जैसे थिंकिंग करते हैं, मतलब पॉजिटिव या नेगेटिविटी का, वैसे ही हम लोग के साथ होना स्टार्ट होता है. Okay. वही होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन. Okay, चलिए, इंतजार की घड़ियां खत्म, and let's get back to law of attraction. Law of attraction, what it is exactly, उस पर बाद में आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज आपको बोलना चाहता हूँ. Either you believe or you don't believe. लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम करता है, चाहे आप इस पे फोकस करो या इसको मानो या ना मानो. और ये उसी के लिए ज्यादा काम करता है जो इसको मानता है. मतलब मुझे अगर आप पूछो तो मुझे तो लगता है कि मैं इसे 100% मानता हूँ. क्या है वो बाद में आएंगे इसमें, लेकिन बहुत लोग हैं जो बोलते हैं कि कभी कभी मैं मानता हूँ, कभी कभी मैं इसको बिलीव नहीं करता हूँ. लेकिन गाइज, अगर कभी कभी वाला सीन है तो मतलब है आपको बिलीव नहीं है. तो आपको 50% बिलीव है, और 50% बिलीव मतलब 50% डाउट है आपको. 50% डाउट है मतलब यू डोंट बिलीव इट 100%. और बिलीव हमेशा या तो 0% होता है या तो 100% होता है. अगर आप अपने वाइफ को, अपने पार्टनर को, अपने स्पाउस को बोलोगे कि आई लव यू और आई बिलीव यू 99%,
मुझे नहीं लगता उसको काफी अच्छा लगेगा, बोलेंगे वो बोलेंगे या सोचेंगे जरूर कि 1% क्यों रह गया, राइट? सो बिलीव इज ऑलवेज 100%. Please read this. Whether you are remembering something from your past or imagining something about your future or observing something in your present. मतलब आप अगर पास्ट के बारे में सोच रहे हो या फ्यूचर के बारे में इमेजिन कर रहे हो या प्रेजेंट के बारे में ऑब्जर्व कर रहे हो, कुछ भी, you are offering thoughts vibration now that the law of attraction is responding to now. It means आप हमेशा आपके दिमाग में जो भी चलता है ना कि मैं ये करूंगी, मैं ये करूंगा, मैं इसको पाऊंगा, मैं इसको नहीं पा सकता, कोई भी चीज जिसको आप पाना चाहते हो और आप बिलीव करते हो कि ये मैं पाऊंगा ही पाऊंगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके सामने वो चीज लेके रख देता है. और एक चीज मैं बताऊंगा, कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं हे भगवान मैं फेल ना करूं, मैं फेल ना करूं, मैं फेल ना करूं. कहीं ना कहीं उसके दिमाग में है कि मैं फेल कर सकता हूं. कहीं ना कहीं उसके दिमाग में है, क्योंकि जो टॉप करता है वो कभी ऊपर वाले को नहीं बोलेगा कि मुझे पास करवा दो. जिसके दिमाग में एक डाउट है कि मैं फेल कर सकती हूँ या मैं फेल कर सकता हूँ, तो वो वही सोच रहा है, उसी को ऑब्जर्व कर रहा है, उसी को सोच रहा है, एंड अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस, वो फेल ही करता है. बहुत लोग सोचते हैं कि जब हम हम लोग बहुत समय, बहुत रिलेशनशिप में भी हम लोग देखते हैं कि बहुत लोग वो एक एक फूल लेते हैं, फूल को एक एक करके उसके पेटल को निकालते हैं, ही लव्स मी और शी लव्स मी नॉट, शी लव्स मी, शी लव्स मी नॉट. उसके दिमाग में ना एक ख्याल रहता है कि कहीं लास्ट में ना वो लव्स मी नॉट ना आ जाए, और देखा जाता है कि ज्यादातर वही आ जाता है. दिस इज समवेयर a universe is offering you what you want or what you really don't want, but you feel that you will get. तो बार बार बोल रहा, अच्छे समझे, जो आप चाहते हो आपको वही मिलता है, या जो आप चाहते हो कि मेरे को ना मिले वही आपको मिलता है. ये दो चीज आपको हमेशा मिलता है. Can I just समझा नहीं ask सर, a फिर से question? उसको. या शिवांगी, सर ऐसा होता है ना कभी, जैसे कि हम सपोज इफ यू आर टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप, आई विल आस्क वन थिंग अबाउट रिलेशनशिप. समवन, कभी ऐसा होता है कि वी स्टे विद समवन बट हम अंदर ही अंदर सोचते हैं कि आई डोंट थिंक दैट ही इज मेड फॉर मी, आई डोंट थिंक ही डिजर्व टू बी विद मी. सो ऐसा होता है सर कि इस कंफ्यूजन के कारण अल्टीमेटली हम दोनों अलग हो जाते हैं. यस, दैट बिकॉज दैट समवेयर लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए वो जगह बना देता है जहां पे आप और वो दोनों साथ नहीं रह पाते. एग्जैक्टली. या देवाशीष सर एक्सप्लेन कीजिए फिर एक बार. हाँ, अरे मैं एकदम एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा, 10 बार 100 बार एक्सप्लेन करूंगा, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. और आई रियली वांट कि एवरीवन शुड गो विद मी. सो पूरा मेरा दिमाग को ऊपर से चला गया ये. एक बार दिमाग में घुस गया ना और ऊपर से नहीं जाएगा, तो उसको एकदम अभी एकदम टेंशन ना ले. Those who have joined late, guys, today our topic is law of attraction. Many people, they know about it, many people they talk about it, but it has been seen people they don't follow this. Okay, see, कभी कभी हमें लगता है ना कि yes I am going to get it, एकदम confident होके हम लोग बोलते हैं कि yes I will get it, आज नहीं तो कल मेरे को वो मिलने ही वाला है. ठीक है, एंड जब हम लोग ऐसा सोचते हैं और पूरा बिलीफ रखते हैं अपने दिमाग में कि मेरे को वो मिलने ही वाला है, और वो जो मिलने वाला है ना, हम लोग पहले से ही खुश हो जाते हैं कि यार मिलने वाला है. मतलब इतना बिलीफ है कि वो खुश हो गया कि यस मेरे को मिलने वाला है, वो चाहे स्टैंडिंग ओवेशन क्यों ना हो ड्यूरिंग योर पब्लिक स्पीकिंग. और देखा जाता है कि उस इंसान को वो चीज मिल जाता है. तो कैसे हुआ, एक इंसान को one person wanted something and how that really appears in front of that people, that person. इसका मैं ऑपोजिट एग्जांपल दूंगा. बहुत लोग कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, नहीं सर बहुत समय मैं सोचता हूँ कि मुझे स्टैंडिंग ओवेशन मिले, लेकिन मैं बहुत बिलीव करता हूँ, आई ट्राई अ लॉट, बट मेरे को स्टैंडिंग ओवेशन नहीं मिलता है.
फिर मैं उसको पूछता हूँ, अच्छा एक बात बताओ, जब तुम परफॉर्मेंस दे रहे थे तुम्हारे दिमाग में वो डर था कि नहीं कि तुमको नहीं भी मिल सकता है? तो उसने बोला हाँ, थोड़ा तो हमेशा रहता ही है ना कि अब वो सब कुछ तो मेरे हाथ में नहीं है, एक डाउट तो रह जाता है। तो भाई जहाँ पे डाउट है वहां पे बिलीफ नहीं है। If there is a doubt, there is no belief, and law of attraction only works when there is a belief. Law of attraction सिर्फ belief पे ही काम करेगा। Guys, those who have joined late today, our topic is law of attraction. बार बार मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इसके बाद मैं repeat पीछे नहीं जाऊंगा। Okay? Law of attraction always works. हमेशा काम करता है, हमेशा, चाहे आप मानो या ना मानो। लेकिन जो लोग इसको नहीं मानते हैं या थोड़ा कम मानते हैं, उनके लिए उतना काम करता है, लेकिन वो नहीं मानते कि यह काम करता है। जब एक रिलेशनशिप में एक डर रहता है ना कि ये रिलेशनशिप अच्छा नहीं है और कभी भी टूट सकता है, तो समवेयर यू आर गिविंग सिग्नल टू योर यूनिवर्स दैट देयर इज सम प्रॉब्लम इन दिस रिलेशनशिप। और जब तक वो डाउट रहता है ना, रिलेशनशिप में झगड़ा होता है, रिलेशनशिप में टूट जाने का डर रहता है। लेकिन जब दोनों बिंदास हो जाते हैं ना, यस वी नो ईच अदर, वी बिलीव ईच अदर, और हम लोग साथ में रहेंगे, कोई टेंशन नहीं है, रहेगा रहेगा, नहीं रहेगा नहीं रहेगा, बट आई बिलीव कि वो रहेगा। जब बिलीव होता है, डर नहीं रहता है, पीपल दे परफॉर्म, पीपल देयर रिलेशनशिप परफॉर्म्स। दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मीन्स हाउ यू विल अट्रैक्ट समथिंग इन योर लाइफ। अगर ऋषिता चाहती है कि मेरे को लाइफ में ये बनना है और उसको अगर 100% बिलीफ है, तो उसको कोई नहीं रोक सकता। आप बोलोगे सर तब तो बिलीफ कोई भी करेगा, बोलेगा कि मेरे को ये चाहिए, बिलीव करेगा, हाँ मैं बिलीव करता हूँ कि मुझे मिलेगा, तो इसका मतलब मिल जाएगा? नो सर। मिलेगा तभी जब बिलीफ होगा। और जो बिलीफ को बहुत लोग समझ नहीं पाते, व्हाट इज दैट एग्जैक्ट बिलीफ, ये आता कहाँ से है? ओके, माय क्वेश्चन इज टू शिवांगी, ये बिलीव आता कहाँ से है शिवांगी जी? कहाँ से आएगा? Yes. सर मैं बोलने ही जा रही थी सर, बिलीफ तभी आता है जब हम उस काम में लगे हुए रहते हैं। मतलब अगर वो काम, जैसे सपोज इफ आई गेट टू हैव अ कंपटीशन, ठीक है, और उस कंपटीशन में मुझे पार्टिसिपेट, इनफैक्ट सर अभी मैं अगर एग्जांपल बताऊं तो मेरे साथ हो चुका है। अभी मैं अपने आप को बहुत अट्रैक्ट कर रही थी कि मुझे इस कंपटीशन में एनी हाउ सेलेक्ट होना है। एक यूट्यूब चैनल जिसका 5 मिलियन सब्सक्राइबर है, दे आर कंडक्टिंग अ कंपटीशन एंड आई जस्ट पार्टिसिपेटेड एंड आई हैड अ फेथ कि हाँ मेरा हो जाएगा, आई नो दैट। नाउ दे कॉल्ड मी फॉर अ स्टूडियो राउंड इन दिल्ली। तो अभी क्या है कि सर मेरा एक्सपीरियंस, वो कहा कि नहीं इस पे मेरा पता है, मेरे को ये वीडियो अगर मैं सेंड करूंगी तो पक्का हो जाएगा। बट तब हुआ जब मैंने उस पर मेहनत किया, जब मेरे को लगा कि हाँ अगर मैं इतना दूंगी तो मुझे इतना मिलेगा, तो वो मेरा एक बिलीफ स्टार्ट हुआ एंड देन फिर एब्सोल्युटली राइट। सो गाइस, आज हम लोग सीखेंगे कि हाउ वी विल अप्लाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन आवर लाइफ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स फॉर एवरीवन, आप चाहो या ना चाहो, लेकिन इसको अगर हम डेलिबरेटली अपने लाइफ में यूज करना चाहे तो कैसे करेंगे? Sir, is there any definition of that? There is no such definition of it, but yes, we'll try to see so many small paragraph on law of attraction which you might find that it might define law of attraction. So in law of attraction, if you really want a definition, I would only say what we want in our life, we get that. Sir, what will be your answer if you're telling about belief? मतलब belief कैसे आएगा? अरे आएंगे हम तो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। पहले मैं आप लोग के बारे में देख रहा हूँ कि आप लोग को कितना बिलीफ के बारे में पता है। ओके, सो आई एम जस्ट आस्किंग दैट। ओके फाइन। सो गाइस, हम लोग थोड़ा आगे जाएंगे। व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड व्हाट इज बिलीफ and how we can define everything, we can talk about everything. Okay, let's go ahead. So you can see law of attraction को आप ऐसे define कर सकते हो कि your thoughts and your feelings create your life. आपकी जो सोच होगी, आप जो फील करोगे हमेशा, आप उसी को अपने लाइफ में क्रिएट करोगे। You know, ultimately वही हुआ कि जो हम चाहेंगे वही हमको मिलेगा। यहाँ पे बहुत लोग सोच रहे होंगे ऐसा थोड़ी ना होता है सर रियली में।
मैंने एक लड़के को चाहा था, मुझे काफी बिलीव था कि वो मुझे मिलेगा, लेकिन वो मुझे नहीं मिला। मैंने ये और वैसे वर्षा हो सकता है, जस्ट वो स्पॉन्टेनियसली जो आया मैं बता दिया। सो गाइज एक चीज मैं बता दूं, ऑफ कोर्स व्हाट वी वांट वी गेट इन आवर लाइफ, लेकिन वी विल नॉट अप्लाई दिस टू गेट एनी पर्सन इन आवर लाइफ, दैट इज नॉट एथिकली राइट। मैं फिर से रिपीट करूं, ऑफ कोर्स आप जो चाहोगे वो मिलेगा, इसका मतलब है कि किसी इंसान को भी चाहोगे तो क्या मिल जाएगा? आंसर है यस, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स क्या है? पहला है कि ये एथिकल नहीं है। दूसरी बात है कि जिसको आप चाह रहे हो वो भी तो किसी और को चाह रहा है ना, राइट? टू अंडरस्टैंड, उसका भी तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक बात आता है ना उसका। तो वो ऑलरेडी दूसरे के तरफ अगर कहीं ना कहीं दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड है, तो आप उसको फिर अपने तरफ अट्रैक्ट एथिकली नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम लोग कोई इंसान को अट्रैक्ट करने की बात यहाँ पे नहीं करेंगे। वी आर ट्राइंग टू टॉक अबाउट समथिंग जो हम डिजर्व करते हैं। हमारा सक्सेस हो, हमारा करियर हो, हमारा लाइफ हो, हमारा प्रोफेशन हो, एनीथिंग जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगा। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। देखो, वो कन्विक्शन से बोलना कि देयर इज नो डाउट अबाउट इट, ये इंपॉर्टेंट है कि आप कितना बिलीव करते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को। अगर मैं आपसे ही पूछूं, आप जो लाइफ में चाहते हो, आर यू गोइंग टू गेट इट? ऋषिता, Yes, sir. हाउ मच आर यू कॉन्फिडेंट? 100%, sir. 100% बोल देंगे सर, नीचे क्यों देख रहे हो? 100% तो बोलो ऐसे कि खून खोल जाए। सर डेफिनेटली सर, कोई डाउट नहीं है मेरे को। Yes, sir. कोई डाउट है नहीं। वो है नहीं, आई नो कि क्लास में कोई डाउट नहीं रहेगा, लेकिन क्लास के बाहर जाके वो डाउट्स वाला बास्केट खुल सकता है। ओके, हाँ, उसी पे काम करना है सर। हाँ, तो इसका मतलब है कि डाउट है, राइट? सो डाउट रहेगा तो नहीं होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। Napoleon Hill said, believe in yourself, but do not tell the world, show it. See, this is something, which is being said, that show people what you can do. Do not, you don't need to tell people that what you want to do. This is very interesting. Know what you want and continue to want it. You will get it if you combine your desire with your faith. The power of desire when combined with faith become invincible. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नो व्हाट यू वांट एंड कंटिन्यू टू वांट इट। आज ना बहुत लोगों के पास पेशेंस नहीं है। अगर कुछ चाहिए होता है, उसको अगर ऑन द स्पॉट नहीं मिलता है ना, दे चेंज देयर डेस्टिनेशन, दे डोंट कंटिन्यू वांट इट। Guys, continuing wanting it is very important. Don't write everything because I'll be sharing you with this PDF. So don't waste time and please listen and ask question kahin pe agar doubt ho, that is more important. Okay, I'll be sharing you this PDF, so don't write. कोई भी चीज को अगर चाहो तो उसको कंटिन्यू चाहते रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द फेथ, यहाँ पे है डिजायर एंड फेथ, ये दो चीजें बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। Desire and faith. Any question till now? Otherwise, we'll go ahead. Sir, what is the meaning of invincible? Invincible मतलब किसी को कोई इसको हरा नहीं सकता। Invincible है वो, उसको कोई हरा नहीं सकता, उसको कोई गिरा नहीं सकता। Invincible अच्छा वर्ड है for your word collection. Okay, let's go ahead. Hey, have you heard about the movie yes, Three Idiots? 3 Idiots. Yes, sir. I think many people, I think most of the people you have seen it. Yes, sir. Yes, sir. Farhan was never happy but loved to click pictures. He used to always click pictures. There was a dream in his mind to become a photographer and finally he became one. आपने देखा होगा ये
हमेशा फोटो खींचता था, लेकिन उसको कभी लगा नहीं कि वो कभी उस मुकाम में पहुंचेगा, लेकिन वो हमेशा सब कुछ करता था जो उसको इम्पोर्टेंट है। वो जिस फील्ड में है पिक्चर खींचना, वो हमेशा पिक्चर खींचता था, हर हमेशा चाहता था कि काश मैं उस इंसान के लिए काम करता, लेकिन एक डिप्रेशन था कि शायद मैं ना कर पाऊं, लेकिन वो खींचता रहता था हमेशा। फेथ नहीं था सर। फेथ नहीं था, लेकिन वो अपना काम करते रहता था। कंटिन्यूअस वर्किंग ऑन इट। हाँ, कंटिन्यूअस वर्किंग था, फेथ नहीं था। लेकिन जब वो रैंचो के साथ मिला, मतलब आमिर खान के साथ मिला, उसमें वो फेथ आने लगा। जब आमिर खान ने उसको बताया कि यू शुड डू दैट, उसको भी लगा कि यस मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपने फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकता। अब फैमिली वाज द रीजन। मैं नहीं बोलूंगा कि फेथ नहीं था, बेसिकली उसको लगता था कि फैमिली मुझे वहां पे वो काम करने नहीं देगी। तो मैं नहीं बोलूंगा कि फेथ वाज द रीजन, डिजायर एंड फेथ था, लेकिन कहीं अपनी एक फैमिली की मजबूरी थी जिसके लिए उसको लगता था कि वो नहीं कर पाएगा। लेकिन डिजायर था, फेथ था, एक्शन था, and after that we saw that he became the photographer. Same with Raju. Raju was never happy, had many family responsibilities. There was a dream in his mind to become an employee of a big company, and finally he became one. उसको भी, राजू को भी लगता था कि काश वो एक बड़ा जगह पे होगा, लेकिन शायद एक्शन नहीं करता था। लेकिन जब रैंचो से मिला, उसने एक्शन भी स्टार्ट कर दिया। जैसे ही एक्शन किया तो उसमें बिलीफ बढ़ने लगा। उसके बाद वी ऑल नो दैट ही गॉट द चांस। सो आई थिंक अगर आप थ्री इडियट्स को अच्छे से देखो, ऐसे बहुत सारे मूवीज हैं, लेकिन थ्री इडियट्स को मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली बोलूंगा कि वहां पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर बहुत जोर दिया गया कि इंसान अगर चाहे तो वो कुछ भी बन सकता है, अगर उसका डिजायर हो, एक्शन हो और बिलीफ हो। Same with Rancho. Rancho used to be always happy, but his dream was beyond getting the degrees and qualification. There was a dream in his mind to do something into application of science in real sense. उसको डिग्री विग्री नहीं चाहिए था, उसको चाहिए था कि मैं साइंस में कुछ रियल चीज करूं जो रियली में लोगों को हेल्प। इसीलिए उसके पास सब था, वो टॉपर था, बट फिर भी वो खुश नहीं था क्योंकि उसका टारगेट कुछ और था। बट अल्टीमेटली वो एक्शन करता गया, एंड अल्टीमेटली उसको एक बिलीफ था, एंड अल्टीमेटली ही रिसीव्ड दैट। उसको अल्टीमेटली मिला जो उसको अल्टीमेटली चाहिए। गाइस, आई एम टेलिंग टू एवरीवन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स फॉर एवरीवन हु बिलीव्स इट। अगर आप बिलीव करोगे तो आपके साथ भी होगा। आज तक तो हुआ है। अगर आपके साथ नहीं होता है तो आप दुनिया के पहले ऐसे इंसान होंगे जिसके साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता हो। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में अगर आप मुझे पूछोगे, मुझे ये पता चली 2010 या 2010, आज से 10 साल पहले। लेकिन इसको समझने में ना मेरी नानी याद आ गई, क्योंकि बहुत लोग बोलते थे कि ऐसा थोड़ी ना होता है, आप चाहोगे, बिलीव होगा और आपको मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं मेरा भी बिलीफ ना डगमगा जाता था। लेकिन the more I studied on this, I really started feeling that yes, it does work. Yes, any question till now? We are talking about law of attraction. Any question? Guys, please अपने क्या बोलते हैं? Yes, sir. स्माइल चाहिए। Yes, sir. मेरे को सैड फेस से एलर्जी है। स्माइल कर रही हूँ। स्माइल कर रहे हैं, ये क्या बात हुआ? ओके, चलिए कोई बात नहीं। I really want to see people should enjoy the class and understand, because enjoying is what is important. Okay, let's go ahead, guys. So what was the manifestation tool? So here comes the manifestation tool. The manifestation process has 3 steps. 3 steps होता है किसी law of attraction को अपने लाइफ में कैसे आप अप्लाई करोगे। There are 3 steps: ask, believe and receive. Ask, believe and receive. So before I go ahead, I really want to know
what you understand by this ask, believe and receive? Anyone? अगर किसी को भी लगता है कि you know he's getting the clue. Ask. What is ask? Ask yourself what to do. Ask yourself what you do, what you want to do, or what you want to get. Yes. Okay. Yes. And what is belief? Belief, So faith. believe what you want to Believe yourself. what you want to become. What you want. According to me, first ask something to yourself that can Okay. you do this or can you do that, then Okay. believe on yourself that yes, I can achieve all this, and Okay, I then can achieve. receive the positive vibes from your aura and everything from the environment. Okay. Very good, Dipanshi. Rightly said. Okay, let's talk about the ask. Now we are in the manifestation tool and how we can ask. क्योंकि आप जो बोलते हो ultimately आपको वही मिलता है. आप ask क्या करते हो? That is very much important. Okay. So what is ask? Power of ask. आप देखे होगे जिनी जो अलादीन के पास जाता है और बोलता है कि बोलो आका क्या चाहिए. उस समय वो आका थोड़ी ना बोलते हैं कि कुछ चाहिए ला दो, जो भी अच्छा लगे ला दो. You know, the Aladdin speak very specific. बॉस मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये ला दो. और वो जिनी उससे जिन निकल के वही चीज उसके सामने ला देता है. बोलता है योर विश इज माई कमांड, योर विश इज माई कमांड. आप जो बोलोगे आपके लाइफ में वही होगा, वही मैं लाऊंगा. So it is law of attraction is exactly same. आप जो बोलोगे आप वही लाओगे. इसका मतलब है जैसे एक एग्जांपल हो जाए, छोटा सा एग्जांपल है. अभिषेक गौतम, ओके, हाउ आर यू? फाइन सर. फाइन. तो देखा, अभिषेक ने फाइन बोला, उसका पूरा फोकस फाइन पे ही गया, और फाइन बोला बोल के उसके शरीर में जितना फाइन होने के लिए जितना एनर्जी जरूरत है उतना ही फाइन वो अभी फील कर रहा है. लेकिन अगर वो फाइन की जगह कुछ और बोलता जो फाइन से भी बहुत बड़ा होता, तो वो उस बड़े चीज को अट्रैक्ट कर सकता. जैसे अगर वो बोलता कि ऑसम सर, वंडरफुल सर, माइंड ब्लोइंग सर, तो उस चीज को वो अट्रैक्ट करता. हमारा प्रॉब्लम क्या है ना कि हमें कोई अगर बोलता है कि भाई कैसे हो, तो हम लोग बोलते हैं चल रहा है. तो ये जो चल रहा है हम लोग बोलते हैं ना, तो कहीं ना कहीं अपने जिनी को भूलते हैं कि भाई चल रहा है और तुम भी थोड़ा सा और चला लेना. सो हम लोग वी टॉक अबाउट दैट ओनली, वी नेवर आस्क फॉर मोर. हमें लगता है कि जब लाइफ ऑसम होगी तभी तो ऑसम बोलेंगे, और लाइफ वेट कर रहा है कि ये बंदा जब ऑसम बोलेगा तब मैं इसको ऑसम दूंगा. अरे तो जिनी तो वेट कर रहा है ना, भाई आप बोलोगे तब ना वो देगा, वो थोड़ी ना पहले से देगा. तो लाइफ है जिन और मैं हूं अलादीन. लाइफ बोल रहा है क्या चाहिए, आप बोल रहे हो फाइन, चल रहा है. अब वो क्या देगा, वो फाइन ही देगा, चल रहा है वाला ही आपको लाइफ देगा ना. सो व्हाट यू आस्क इज इंपॉर्टेंट. ओके रिशिता, व्हेन यू विल बी वर्किंग, जब आप काम करोगे, व्हाट विल बी योर फर्स्ट सैलरी यू एक्सपेक्ट, आपका ड्रीम है? सर 70,000. तो उसने स्पेसिफिक बोला, एकदम 70,000 चाहिए. तो ऐसा नहीं, ऐसा देखा गया है रिशिता कि जो लोग स्पेसिफिक बात करते हैं ना कि मेरे को 70,000 चाहिए, मेरे को 1 लाख चाहिए, मेरे को 50,000 चाहिए, देखा गया है कि उनको और ज्यादा स्पेसिफिक मिलता है. जो लोग बोलते हैं ना कि कैसा लड़का चाहिए, मेरे को बहुत स्मार्ट लड़का चाहिए. अब स्मार्ट लड़का का क्या डेफिनेशन है, व्हाट इज स्पेसिफिक? मेरे को एक ऐसा लड़का चाहिए जो यू नो आईटी कंपनीज, टॉप 10 आईटी कंपनीज में किसी एक कंपनी में एक मैनेजर वाली पोस्ट में एटलीस्ट अच्छे रैंक में हो, जिसका सैलरी अप्रॉक्स 50 to 60,000 हो. तो जितना मैं उसके बारे में बोल रहा हूँ, आई एम गोइंग मोर स्पेसिफिक अबाउट व्हाट आई आस्क.
So But guys, asking something which is possible, maybe practically वो चीजें कभी कभी मतलब you already told us in the early मतलब in this session only that the things should be ethnetical. So when it is come under practically, so can we dream of the things that we can't get it? नहीं, for example बताइए आप मेरे को. अभी talk very specific, हाँ, क्योंकि जो आपके लिए impossible है हो सकता है किसी के लिए possible हो. हाँ, but किसी के लिए ना, if it is impossible for me, how can I ask to myself that I have If it to? is possible for that person, then why it is not possible for me? How can I dream to be the wife of prime minister or something and अभी an highest post person? हाँ, I said it before कि हम यहाँ पे किसी इंसान को पाने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज नहीं करेंगे. Okay, at the post, अगर मैं किसी पोस्ट की भी बात करूं, तो अगर मुझे किसी पोस्ट पे जाना है तो उसका एक प्रोसेस है. उसका एक प्रोसेस है. So I have to follow the process. I have to see, I have to ask it that I really want that. उसके बाद मुझे वो प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा. ठीक है. There is, अगर हम पहले से ही सोच ले नहीं होगा तो फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखने का तो कोई फायदा नहीं होता है. हाँ, ये जरूर देखना पड़ेगा कि am I eligible to apply for it or not? If I am eligible for applying that position, then मुझे कोई नहीं रोक सकता अगर मैं जाऊंगा. एक चीज मैं बताता हूँ. एक स्टूडेंट था मेरा, अच्छे सुनिए, एक स्टूडेंट था मेरा, आज से 10 साल पहले की बात होगी. वो मेरे पास आया और मेरे को बोला, सर मेरा 2 एग्जाम है अगले संडे और उसके बाद वाले संडे में गवर्नमेंट एग्जाम है बैंक का, एक एसबीआई में एक आरबीआई में. अच्छे से सुनिए इस बात को. एसबीआई में आरबीआई में एग्जाम है सर, तो मैं नेक्स्ट संडे उसके बाद वाले संडे नहीं आऊंगा. उसका क्लास रहता था संडे को. मैंने बोला ठीक है. सर एक बात बोलिए ना सर, मैं दोनों में किस में ज्वाइन करूं, आरबीआई में कि एसबीआई में? मैं बोला यार दोनों अच्छा है. नहीं सर मेरे को बोलिए, क्योंकि मैं पहले से मेंटली रेडी होना चाहता हूँ. बोले यार पहले रेडी मतलब पहले तो तू एग्जाम देगा, उसके बाद इंटरव्यू देगा, उसके बाद तुम्हारा होगा, उसके बाद ना तू बोलेगा. बोला सर वो हो जाएगा, आप मेरे को खाली बोलिए कि आप होते तो किस में ज्वाइन करते. मेरे को ये थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस दिखा, ओवर कॉन्फिडेंट लगा. बट फाइनली द रिजल्ट वाज ही गॉट इनटू आरबीआई एंड एसबीआई. फिर वो मेरे को बोला सर वी हैव डिसाइडेड कि आई विल गो फॉर आरबीआई. अगर मैं किसी को बोलूं कि गवर्नमेंट एग्जाम देना इजी है कि हार्ड है, वो पहले ही बोलेगा बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है, क्योंकि वो 10 को देख रहा है कि सब हार्ड बोल रहा है तो उसको भी लग रहा है कि हार्ड है. अरे भाई मेरे को अगर प्रोसेस पता है, अगर मुझे पता है कि क्या क्या चीज आएगा, अगर वो मुझे पता है कि क्या आएगा, क्या आ सकता है, और अगर उन चीजों में मैं माहिर हूं, अगर मैंने उस पर काम किया है तो जरूर होगा. लेकिन क्यों नहीं होगा? अगर ओके किसी का होता है उसको 100 में 100 मिलता है, मेरे को भी तो 100 में 100 मिल सकता है. मैं ऐसे क्यों नहीं देख रहा हूँ चीजों को. सो वो लड़का अभी आरबीआई में काम करता है एंड ही वाज, मुझे लगा कि शायद तो ओवर कॉन्फिडेंस एंड कॉन्फिडेंस में ना एक रेजर्स डिफरेंस है. रेजर्स एज डिफरेंस बोलते हैं इसको, रेजर्स एज डिफरेंस. अगर आपने ये वर्ड कभी सुना है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इसको लिख सकते हो. इट्स कॉल्ड रेजर्स एज डिफरेंस. ओके, रेजर्स एज डिफरेंस मतलब काफी छोटा एक डिफरेंस होता है ओवर कॉन्फिडेंस एंड कॉन्फिडेंस में. और वो डिफरेंस होता है, कंसिस्टेंसी चाहिए इसके अंदर. मतलब मे बी वी गेट. हाँ एग्जैक्टली. उसमें आपको लगे रहना पड़ेगा. ऑफ कोर्स आपको उसमें लगे रहना पड़ेगा, लेकिन लगे रहने से तो नहीं होगा. मेन है कि द नॉलेज शुड बी क्लियर. वो एग्जाम में जो आने वाला है, आई शुड बी नोइंग कि ये चैप्टर आएगा और वो चैप्टर मैंने ऑलरेडी किया हुआ है. हाँ, चेंज क्या होंगे, जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन रहेंगे, जो करंट अफेयर्स होंगे, वहां पे चेंजेस आएगा. लेकिन बाकी तो एक कॉन्सेप्ट्स तो सेम आएगा, वो क्वेश्चन का पैटर्न चेंज होगा. सो अब he was very confident and he got into 2 exams. और बहुत लोग हैं जिनको एक एग्जाम भी नहीं होता है. कहीं ना कहीं क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन रीजन हो सकता है? यस हो सकता है. अगर आप में से कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है सर, डेफिनेटली होगा. जब हम ये तीनों मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को पढ़ेंगे तब आप सोचिएगा कि यस देयर इज अ रीजन अगर मेरी गवर्नमेंट एग्जाम में नहीं हो रहा है या नहीं हो रही है. कहीं ना कहीं एक बिलीफ का
एक मिसिंग पार्ट है वहां पे, उसको भरना जरूरी है। क्योंकि सर कुछ दिन पहले मैं एक इंटरव्यू सुन रही थी, वो एक आईपीएस ऑफिसर का था, वो सफीन हसन करके। तो उन्होंने जब इंटरव्यू में बोला कि जब हमको प्रोसेस पता होता है तो हमको पता होता है वहाँ पे जाना कैसा है। तो सिलेबस में होता है कुछ, एक उन्होंने हिस्ट्री लिया हुआ था, तो उनको लग रहा था कि वो मेडिएवल पार्ट से कुछ नहीं आएगा। तो उन्होंने सर से जाके पूछा कि सर इसको पढ़े या छोड़ दे। तो उनका सर उसे रिप्लाई दिया कि देखो क्वेश्चन तो वैसे आता नहीं है उतना ज्यादा, लेकिन अगर आ गया तो मेरा रिस्क नहीं है। तो उनको पता चल गया कि उनका सर किस तरफ इशारा करे, तो सच में वो छोड़ दिया। और उस टाइम एक भी क्वेश्चन उस चैप्टर से आया नहीं था। तो वो पूरा स्ट्रांगली बिलीव किए थे, इसीलिए वो रिजल्ट आया। ऐसा नहीं है कि हम लोग कभी कभार और छोड़ देते थे, कुछ भी नहीं पढ़ना है, तब तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। देखो अब लेकिन कौन सा होता है ऐसा। क्वेश्चन आएगा, कौन सा क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, वो हमारे हाथ में नहीं है, वो जो यस सर। सेटअप सेट कर रहा है उसके हाथ में है। तो मुझे फिर भी सर वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ही काम था ना, कि क्योंकि उन्होंने बिलीव किया था कि नहीं आएगा, वो उसका भाई आप पास्ट बिलीव, एक्सपीरियंस आप भी जो था। बिलीव करोगे वही वो हो जाएगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। नहीं, बिलीफ का वो एक तो प्रोसेस है। आप किसी दूसरे चीज में उस इफेक्ट नहीं आपको मिलेगा। आप चाहोगे हे भगवान क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन ना आए, व्हाट इज दिस, ये दिस इज नॉट लॉजिकल, राइट? दिस इज नॉट लॉजिकल। आप अपने लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे ला सकते हो? आप एक क्वेश्चन पेपर में लॉ ऑफ अट्रैक्शन देने की बात कर रहे हो, दैट इज नॉट पॉसिबल। मैं अपने लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ला सकता हूँ कि अगर वो क्वेश्चन आए तो मैं कर दूंगा, काइंड ऑफ एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ओके, चलिए आगे चलिए, सो दैट we try to know more about it. So power of ask is very important. Imagination is everything. It is the preview of life's coming attraction. तो सबसे पहली बात है इमेजिनेशन। आप लोग इमेजिन करते हो कि नहीं? बहुत लोग अपने दिमाग में इमेजिन तो करते हैं, लेकिन हमेशा एक डाउटफुल रहता है कि ऐसे बोलते हैं काश मैं बन पाता, काश मुझे ये गाड़ी मिलती, काश। अगर आपकी लाइफ में कोई चीज में अगर काश है तो डेफिनेटली वो आपको नहीं मिलने वाला। इमेजिनेशन जब करे ना तो उसको एंजॉय करे। इमेजिनेशन मतलब यू आर एंजॉयिंग दैट मोमेंट। इमेजिनेशन मतलब ये नहीं कि यू आर सीइंग दैट मोमेंट एंड आप बोल रहे हो कि काश। इमेजिनेशन मीन्स यू आर एंजॉयिंग दैट मोमेंट, यू आर लिविंग दैट मोमेंट, दैट इज इमेजिनेशन। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बहुतों को देखा है जिनका लॉ ऑफ अट्रैक्शन नेगेटिव होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन नेगेटिव, इसका मतलब खुद पे बिलीव They नहीं only करते। think negative things. यस सर। मतलब उसका आस्क जो है वो भी नेगेटिव है, बिलीव भी नेगेटिव है, सब नेगेटिव है। बहुत लोग क्या क्या सोचते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन उनके लाइफ में काम करता है, अभी आप देखोगे। You know what happens when we focus on negative? जब हम लोग नेगेटिव पे फोकस करते हैं तो क्या होता है? Even when the action has not been performed, अभी भी कुछ हुआ नहीं है, लेकिन हम लोग पहले से ही सोच रहे हैं कुछ ना कुछ नेगेटिव जरूर होने वाला है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलता है तथास्तु, जरूर होगा। तुमने चाहा जो है, मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ तुम्हारे बात को। ये देखो, नेगेटिव वाला ज्यादा होता है। मैं इस दिन बारिश हो रहा देखो था, ना, मैंने यहाँ पे देखो सोचा ये मैं सोचा शादी गिर से जाऊंगी, पहले, सचमुच गिर गया बाथरूम में। अच्छा ये सुनो, ये देखो, शादी से पहले लड़की भी सोच रही है यार मेरी जो मदर इन लॉ होगी वो कैसी होगी, और मदर इन लॉ भी सोच रही है कि मेरी जो लड़के का बहू होगा वो कैसा होगा, कहीं खराब ना हो जाए। और अल्टीमेटली देखा गया कि दोनों के बीच में हमेशा फाइट ही चलता रहता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलता है तथास्तु, डाउट करो और भुगतो, एंड दे सी दैट इफेक्ट इन लाइफ। अगर मदर इन लॉ सोचती कि यार जो भी होगा अच्छा होगा, मेरा बेटा अच्छा है, तो वो जब कोई किसी को चूज करके लाएगा ना तो वो मेरी जो वो होगी ना वो भी बहुत अच्छी होगी। आई बिलीव दैट, ऐसा अगर कोई सोचे, द चांसेस बिकम्स वेरी मच हाई दैट उसको भी बीवी वैसी ही मिलती है। सिर्फ चांसेस की बात नहीं है, ये क्यों होता है मैं बता रहा हूँ। अगर मेरे दिमाग में है ना कि मेरी सासू माँ कैसी होगी, उसको लेकर टेंशन रहेगा, तो जब रियली में शादी हो जाएगा और सासू माँ मेरे सामने रहेगी ना, तो मेरे दिमाग में ना वही चीज घुस हमेशा घूमेगा
कि क्या वो सही है, क्या वो सही है, क्या वो सही है। और यही चीज उसके दिमाग में भी घुस रहा है कि जा रहा है कि क्या मेरी बीवी सही है, मतलब मेरा बेटा का बहू सही है। ये सही सही मतलब इवैल्यूएशन एक माइंडसेट होता है उसका। ये भी उसको कहीं ना कहीं इवैल्यूएट कर रही है और वो वहां से भी इवैल्यूएशन हो रहा है। जब इवैल्यूएशन होता है ना तो कोई भी खुश नहीं होता है, दोनों दोनों पे क्वेश्चन करते हैं। एक चीज देखो, आप लोग मुझे सुन रहे हो, आप लोग अगर मुझे बिलीव करके सुन रहे हो कि आज बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो देखना आप लोग को ज्यादा कुछ, आप ज्यादा जानोगे। लेकिन आप में से कोई अगर सोच रहा है ना कि आज मैं सुभाष कार्तिक को एक अच्छा क्वेश्चन करूंगा, आज मैं इसको बताऊंगा ना, ये जो सोचता है हमेशा ऐसा नहीं होता है, उसको कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर मिलेगा बोलने के लिए या पूछने के लिए। और उससे क्या होगा, दोनों के रिलेशन खराब होंगे। तो ही बात है, अगर आप कोई नेगेटिव माइंडसेट से किसी को देखेगा ना तो उसके साथ हमेशा नेगेटिव ही होगा, बिकॉज वो पहले से ही एक इवैल्यूएशन माइंडसेट में था। नॉट ओनली दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखना ये चीज को अच्छे से पढ़ो अगर समझ में आए। Sometimes it is seen that parents often feel and speak negative about their children to other family members, relatives, neighbors and others. And as a result, their thoughts become things. बहुत समय पेरेंट्स अपने बच्चों की बुराई करते हैं दूसरे लोगों के सामने। पता है मेरा बेटा करता नहीं है, मेरा बेटा सो बैड, मेरा बेटा ऐसा है, मेरी बेटी ऐसी है। एंड इसका इफेक्ट उनके बेटा बेटियों के ऊपर पड़ता है। दूसरे बच्चों से सर कंपैरिजन भी करते हैं, दूसरे बच्चों से कंपेयर करते हैं। इससे क्या होता है, उसका जो अपना बच्चा होता है ना, उसका कॉन्फिडेंस लेवल काफी गिर जाता है। यस सर, ऐसा देखा यस गया है, सर, जो लोग जिसके बच्चे मैंने जिसके पेरेंट्स अपने बच्चों को काफी कंपेयर करते हैं ना छोटे से ही, वो बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम होता है। इसीलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप डांटो नहीं, लेकिन प्यार भी इतना करो कि वो बैलेंस रहे। कंपेयर तो बिल्कुल नहीं, कंपैरिजन तो ये सेल्फ इमेज को गिरा देगा। एकदम सर, एकदम, आई एडमिट। So this is very much important. Okay, let's go ahead. So वही देखा गया है कि जो लोग ज्यादा बुराई करते हैं ना, उनका जो बच्चे होते हैं ना, वो लोग ज्यादा अच्छा पढ़ाई में कभी कभी नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा रूड हो जाते हैं। मैं ज्यादातर की बात कर रहा हूँ, okay? I'm not talking about exceptions, but it happens. Sometimes children generate stress and negative thoughts in their mind due to tremendous pressure of their parents and their expectation. This pressure further makes, children feel scared of getting failed in exam, not getting selected in interview, not getting appreciation of their real talent, not getting love of their parents, and finally they face downturn in their lives. And as a result, their thoughts become things. जब एक बच्चे का पेरेंट काफी एक्सपेक्टेशन रहता है ना, तो बच्चे को भी पता है कि भाई बहुत एक्सपेक्टेशन है मेरे फैमिली का, और ये प्रेशर ना उसको हमेशा लगता है कि अगर मैं अच्छा नहीं करूँ तो, अगर मैं अच्छा नहीं करूँ तो, एंड दे फेल आफ्टर ऑल। अगेन मैं ये उनका परफॉर्मेंस में पूरा बहुत बड़ा इफेक्ट कर देता है सर। यस, इट इफेक्ट्स, वो परफॉर्म नहीं कर पाता, ये जितना एक्सपेक्टेशन हो जाता है उनके ऊपर पेरेंट्स का, ये परफॉर्म नहीं कर पाता है उस हिसाब से। अगर उसको खुला छोड़ दिया जाए तो nothing will work. Of course. So guys, these are some negative. Sorry to interrupt you, sir. These are some negative effect of law of attraction. ये तो बहुत मस्त एग्जाम्पल है अगर आप अच्छे से देखोगे। Every month before getting the electricity or mobile bill, people are scared of the bill amount, and guess what? As a result, their thought becomes things. मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल आया नहीं, पहले से सोच रहे हैं इस बार का इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या होगा। I really डाउट कि इस बार बहुत ज्यादा होने वाला है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आता है, बोलता है तथास्तु। हम इसको थोड़ा चेंज कर सकते हैं ना। इस बार हमने काफी कंज्यूम किया, इस बार काफी हमने इलेक्ट्रिसिटी को एंजॉय किया, सो उसी हिसाब से इस बार बिल भी आएगा, और इस बार हम लोग काफी सक्षम भी होंगे। वी विल बी वी आर कॉन्फिडेंट दैट वी विल बी एबल टू पे दैट। हर चीज को हम उसको पॉजिटिवली बोल सकते हैं। और जब आता है ना तो अरे यार इतना कम, मैंने इससे ज्यादा ही सोचा था, चलो अच्छा है। the way you take things, it happens. किसी के साथ ऐसा हुआ है, बिल आने से पहले ही सोचा कि बिल बहुत ज्यादा होगा, और हाथ में जब आया तो सच में ऐसा ही कुछ था। कुछ लोग सोचते हैं यार कहीं मेरा टर्मिनेशन ऑर्डर ना मेल हो जाए, देखता है कि मेल खुलता है तो दिखता है टर्मिनेशन ऑर्डर।
मैं बाहर जा रहा हूँ, घर के बाहर जा रहा हूँ, मेरे को ऋषिता नहीं दिखनी चाहिए। ऋषिता आ जाती है आंख के सामने। डोंट माइंड ऋषिता, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल। आपको अरे बिकॉज अरे देखो, मेरे को किसी को देने से ना एग्जांपल समझ में आता है, दैट इज द रीजन। एंड यू आर अ वेरी कूल पर्सन, सो आई एम टेकिंग योर एग्जांपल। नो प्रॉब्लम सर, मैं अवेलेबल हूँ हर समय एग्जांपल के लिए। सो वही मैं बोल रहा हूँ, जो चीज हमें कभी कभी आप लोग को ऐसा लगता होगा, काश उससे मुलाकात होती, काश उसका फोन आता, और अचानक से फोन आ जाता है। ओ माय गॉड, आई वाज एक्सपेक्टिंग यू, मैं तुमको एक्सपेक्ट कर रहा था, एंड सडनली यू हैव कॉल्ड मी। But this may be a coincidence. This may be आप उसको coincidence. कोइंसिडेंस बोल रहे हो, मैं उसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोल रहा हूँ। आप कोइंसिडेंस बोलोगे तो आप उसको डेलिबरेटली यूज नहीं कर पाओगे। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलूंगा तो मैं उसे डेलिबरेटली अपने लाइफ में ला सकता हूँ। दोनों में यही डिफरेंस है। और कोइंसिडेंस होता क्या है? when two event coincides, so ultimately it meets, right? एक चीज मैं बताऊंगा, मुझे एक फूड बहुत पसंद है, जिसको नॉर्मली हम लोग दही बड़े के नाम से जानते हैं। मुझे दही बड़ा बहुत पसंद है। अगर आप लोग कोई अच्छा बनाते हो तो कभी मुझे फीड करना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ऐसा हुआ कि एक बार मुझे दही बड़ा खाना था, तो यहाँ मुझे उतना अच्छा मिला नहीं, तो मैं उस समय जमशेदपुर जा रहा था, तो मैं सोचा कि काश कोई मुझे बुलाए और दही बड़ा खिलाए। एंड यू डोंट बिलीव, मैं जहाँ गया वहां तो नहीं मिला, लेकिन उसके घर से जहाँ फिर एक और घर में गया जहाँ पे मैं अनएक्सपेक्टेड था, जाना श्योर नहीं था, बट जब वहां पे गया तो वहां पे मुझे दही बड़े मेरे सामने आ गए। अब आप बोलोगे कोइंसिडेंस, मैं बोलूंगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सो इट ऑल डिपेंड्स, राइट? बट आज तक आई बिलीव सो मच एंड इट हैपेंस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी ये देखो, a guy met with an accident and was doing self talk, अपने से बात कर रहा था। I knew from the time I crossed my locality, when I saw a black cat just crossed my way, I should have stopped for some times. And as a result, their thoughts become things. ये लड़का पहले से डाउट किया कि यार एक बिल्ली क्रॉस कर ली रास्ता, मतलब कुछ ना कुछ होने वाला है मेरे साथ। वो उसके दिमाग में हमेशा घूम रहा था, कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ होगा। ऊपर से आया लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बोला जरूर होगा, यार रहो। तो सोचो, वेरी ट्रू एक्चुअली। जो सुपरस्टिशंस होते हैं, जैसे बहुत बार होता है, अगर हम लोगों ने ये प्रेडिक्ट किया दैट वी हैव टू वेयर yellow clothes on Thursday and we used to wear it, but maybe one day we can't, matlab it just missed by us, so something going to be happen, something going to be happen, or maybe वो हो भी जाता है। एक लड़के को उसका गर्लफ्रेंड फोन नहीं कर रही है, तो लड़का सोच रहा है जरूर वो किसी के साथ है। बात ये नहीं कि किसी के साथ है, अब क्या हो रहा है, अब ये लड़का उसको बार बार फोन कर रहा है। अच्छे सुनो ये स्टोरी को। ये लड़का फोन कर रहा है, तुम फोन क्यों नहीं उठाती, तुम मुझे फोन क्यों नहीं की? और वो परेशान हो रही है, ऐसा तो कुछ भी नहीं था, उसमें गुस्सा होने का क्या कारण है? लड़का बोल रहा नहीं है, अब वो चिल्ला रहा है, सॉरी। अब लड़की रो रही है। अब जब लड़की रो रही है तो उसके दोस्त ने उसको सपोर्ट किया, यार ऐसे मत रो। अब भाई ज्यादा सपोर्ट अगर कोई इमोशनली करता है ना, तो कभी कभी ना सच में फीलिंग आ जाती है किसी और के ऊपर कि देखो, जिससे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उसने मुझे नहीं सुना, लेकिन जिससे मुझे मेरा दोस्त था वो मेरे बारे में इतना सोच रहा है। सोचो, जो लड़का सोच रहा था, नाउ इट बिकम्स अ थिंग। Are you getting this? कुछ देर पहले यही डाउट कर रहा था वो लड़का, तब तक प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन उसने जो प्रॉब्लम क्रिएट किया, अब सबको एक वीकनेस होता है जब कोई इंसान किसी को सिंपैथी देता है, उस वीकनेस में कभी कभी कुछ फीलिंग्स आ जाते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी प्रॉब्लम हो जाता है। इसीलिए हमेशा आराम से रहो, बिलीफ रखो अपने पार्टनर को, देखना सब कुछ ठीक रहेगा। जितना हम डाउट करेंगे उतना नेगेटिव इमोशन रहेगा रिलेशनशिप में। हम खोल के एकदम उड़ाएंगे, अरे उड़ो ना, बैठो उड़ो, कभी कुछ करना, आई विल नॉट होल्ड यू, देखना वो जाएगा ही नहीं, उड़ेगा ही नहीं हाथ से। दिस इज द मैजिक, बिकॉज यू बिलीव दैट पर्सन समवेयर, ये नहीं उड़ेगा वो।
Okay. So what happens when we focus on positive thing, even when the action has not been performed? बहुत समय होता है कि हम पॉजिटिव सोचते हैं और पॉजिटिव होता है. See this, इसको बोलते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम. आई डोंट नो आपने कभी सुना है कि नहीं. रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, नहीं सुना है सर. RAS, RAS. Is there anyone who can speak about RAS, Reticular Activating System? आप देखोगे कभी कभी ऐसा होता है, हम जो शर्ट पहन के निकलते हैं, हमें सामने कोई दूसरा बंदा दिख जाता है, अरे यार सेम ड्रेस पहना है वो. कभी कभी हम लोग कार लेके निकलते हैं, वो कार हमको पहले कभी नहीं दिखा, नया कार खरीदे, लेकिन जब हम कार खरीदे तब हमें और वैसा ही कार दिखता है, मेरे जैसा कार उसके पास भी है. What does it mean? You know, जो चीज हम मानने लगेंगे वही हमें दिखने लगेगा. ऐसा नहीं है कि ये मतलब मैंने जो कार खरीदा है वो कार पहले कोई नहीं चलाया, बहुत लोग चलाए होंगे, लेकिन मैंने वो कार नहीं खरीदा था, इसलिए वो मेरे फोकस में आया ही नहीं. हो सकता है मेरे सामने से भी गुजरा हो, लेकिन मैंने उस पर गौर नहीं किया. लेकिन जब मैंने वो कार को खरीदा, मैंने अपने कार पे गौर किया, तो मुझे और वैसे कार दिखे हमारे सामने. दिस टोटल सिस्टम, ये सिस्टम जिससे ये होता है, दिस कॉल्ड रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम. इट्स मोर साइंटिफिक टर्म है ये, एज यू नो, आई एम नॉट नोइंग द होल टर्म ऑफ इट, बट इस मतलब साइंटिफिकली ये कैसे होता है, आई कैन नॉट बेसिकली टेल यू. बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है, इट गिव्स यू व्हाट यू रियली स्टार्ट बिलीविंग. आप जब उसे बिलीव करने लगोगे ना, आपके सामने चीजें आने लगेंगी. दिस वेरी गुड यू नो थिंग, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम. इसके बारे में आप और जानकारी ले सकते हो. सो गाइस, बी स्पेसिफिक. फोकस आपका स्पेसिफिक होना चाहिए. फोकस ऑन अबंडेंस, फोकस ऑन बीइंग हैप्पी, फोकस ऑन विजडम, फोकस ऑन मनी. जो चाहिए उस पर फोकस कीजिए. फोकस ऑन प्रॉस्पेरिटी, फोकस ऑन एक्सीलेंट हेल्थ, फोकस ऑन नॉलेज. जो चाहिए उस पे फोकस कीजिए, जो नहीं चाहिए वो अलग बात है. आप जिस पे फोकस करोगे वही आपका आस्क होगा. हमारा जो टूल का जो फर्स्ट पार्ट है आस्क, सो वो फर्स्ट पार्ट इंपॉर्टेंट है. आप जिस पे फोकस करोगे आपको वही मिलेगा. मैंने बहुतों को देखा है बोलते हुए, जॉब नहीं है सर, जॉब बिल्कुल नहीं है, एकदम जॉब नहीं है. उसको जॉब दिखता ही नहीं है. अच्छा एक बात बताओ, आप लोग मुझे देख पा रहे हो? हाँ सर. यस सर. क्यों देख रहे हो? आप देख रहे हो बोल के मैं दिख रहा हूँ, या मैं हूँ बोल के आप दिख रहे हो, मतलब देख रहे हो? आप दिख रहे हो. अच्छा सुनो, मैं देख रहा हूँ बोल के आप दिख रहे हो सर. अच्छा, आप मुझे देख रहे हो बोल के मैं दिख रहा हूँ, ऐसे में मैं यहाँ पे नहीं हूँ. Okay. अगर मुझे आपको देखना नहीं था तो आप दिखते कैसे? Yeah, Devashir, what do you feel? I'm here, that is the reason you can see me, or you see me, that is the reason I'm here. I see you, that's why you are there. I agree with Rishita. I agree with Rishita, because if I don't want to see you, I can see something else also. I can see your image that which is on at your back, which is at your back. That I can see that also. But I want to see you. That's why I am focusing on you. Okay, नहीं, किसी को अगर अगेंस्ट में बोलना हो तो वो बोल सकता है, क्योंकि मैं इसको प्रूफ कर सकता हूँ. अगर किसी को लगता है कि नहीं मैं हूँ बोल के आप देख रहे हो, तो मैं एक सवाल पूछूंगा. अदरवाइज पूछने की जरूरत नहीं है. अगर किसी को नहीं लगता है. हाँ, तो ये अर्जुन को वो देखा, वो बाढ़ देखा, वो मछली देखा बोल के वो तो बहुत और कुछ देख सकता था, लेकिन वो केवल वही मछली का आंख दिखा उनको. Absolutely. So guys, this is very important. You know, wherever our focus goes, energy flows. हमें वही चीज दिखता है जो हम देखना चाहते हैं. इसका एक अच्छा एग्जांपल मैं दूंगा. आपके घर में कोई फोटोग्राफ होगा ना कोई? हाँ सर. हाँ सर है. आप वो फोटोग्राफ को
कभी ना कभी तो देखे होगे, अरे भाई आपके घर पे रखा हुआ है, आपका फोटोग्राफ है, आप अभी जाके मतलब इस क्लास के बाद जाके वही फोटोग्राफ ना फिर से देखना और देखना कि ऐसा कोई चीज है इस फोटो में जो मैंने नहीं देखा था। देखना आपको कुछ ना कुछ तो नया मिलेगा जो आपने इतने दिन तक वो फोटो को देखा लेकिन वो चीज आपके नजर में कभी आया ही नहीं। वो कुछ भी हो सकता है, आपके बगल में, हाँ आपने नोटिस ही नहीं किया, आपके बगल में कोई इंसान जा रहा है उस फोटो में, या कोई गाड़ी जा रही है, गाड़ी का नंबर दिख रहा है, लेकिन आपका फोकस वहां पे था ही नहीं, आप अपने आप पे फोकस कर रहे थे। Because it was immaterial. Yes, it was not important for you. Yes. Right? तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, चीजें आप जब देखना चाहते हो तभी चीजें आपके सामने आती हैं। ये हमेशा जो सोच रहा है ना कि जॉब नहीं है, तो वो फोकस कर रहा है कि जॉब नहीं है और उससे कोई जॉब नहीं दिख रहा है। आपका फोकस अगर सक्सेस है, आपका फोकस अगर है कि मेरे को इस गवर्नमेंट एग्जाम में मेरे को इस बार होने का है, उसके लिए मैं जो जरूरत है मैं वो करने वाला हूँ, आई एम फोकसिंग ऑन दैट, तो कभी कभी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि आपको वो चीज मिल जाए। लेट्स गो अहेड। सो फोकस, आप जिस पे फोकस करोगे आपको वही मिलेगा। आपके आपके शरीर में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, आपको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कुछ बीमारी ना हो जाए मुझे, आप उसको फोकस करोगे ना तो आपकी हालत और खराब हो जाएगी। आप उस समय अगर ये फोकस करोगे नहीं नहीं मैं अच्छा हूँ, मैं ठीक हूँ, इट्स फाइन, कभी कभी ऐसा होता है, ऐसा फीलिंग आता है, आई एम फाइन। व्हेन यू फोकस ऑन बीइंग हेल्दी, यू फील हेल्दी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत लोग ना नेगेटिव टॉक करते हैं पैसे को लेके। Money does not grow on trees. Rich people are evil, cheaters, selfish people, answers, If you are from hood and you become rich, you must be a dope dealer. मतलब अगर कोई रिच बना है ना तो जरूर वो ड्रग्स वग्स लेता होगा। रिच पीपल आर इविल, वो लोग खराब लोग हैं। तो अगर कोई इंसान ऐसा सोच रहा है वो रिच कभी नहीं बनेगा, बन ही नहीं सकता वो कभी। और अगर कोई बोलता है कि मेरे को रिच बनना ही नहीं है, सर क्या if you are from the hood and you become rich means hood मतलब? Hood means suppose you are from the slum areas. Okay. Okay. And suddenly आप रिच बन गए तो जरूर कुछ आपने गड़बड़ किया है, डोप डीलर, कुछ ड्रग्स वग्स का धंधा कर रहे थे आप शायद। तो ये गलत है। जो लोग ऐसा नेगेटिव सोचते हैं ना उनको कभी मनी अट्रैक्ट नहीं करती है। So everything depends on how you ask. Be specific. Energy flows where your attention goes. Life is abundant. The world has abundance. बहुत है, बहुत ज्यादा है लाइफ में। Your talent have no limits, no ceiling. Your purpose is your, choice. Your choices are endless. You are the creator of your destiny. इसका एग्जाम्पल मैं बोलूंगा, हमारा एक कोर्स है जिसमें जिसको हम बोलते हैं ट्रेनिंग फॉर ट्रेनर्स, जहाँ पे हम लोग ट्रेनर्स को ट्रेनिंग मतलब नए किसी को ट्रेनर्स की ट्रेनिंग देते हैं सो दैट वो ट्रेनर बन सके। तो एक बार मेरी वाइफ ने पूछा, ट्रेन द ट्रेनर्स, हाँ ट्रेन द ट्रेनर्स है, डिजिटल लाइफ कोचिंग है। तो एक बार मेरी वाइफ ने बोला कि आप जो सबको ट्रेनर बना रहे हो, आपको नहीं लगता कि वो लोग आप ही का कंपटीटर बन जाएंगे कुछ दिन बाद? अच्छा सवाल है सर। ये सवाल तो मैंने आपको पूछा था जिस दिन हम पहले आप आईटीको में, हम द वेरी फर्स्ट डे आई मेट यू, यही सवाल मैंने आपको पूछा था। ओके, आई रियली डोंट बिकॉज़ ये मेरे को मेरी वाइफ पूछी थी, वो ज्यादा याद है मेरे को, क्योंकि वो लोग को चिंता थोड़ा ज्यादा होता है कि यार ये ट्रेनिंग में है, अगर दूसरा ट्रेनर आ गया तो क्या होगा। सो देवाशीष, व्हाट डिड आई आंसर यू? If you remember that, you have answered that this is a profession. If I share my knowledge to others, then my knowledge will gain more, and this is a profession. फिर मैंने आपको यह पूछा था, अगर आप इतना लोगों को बना रहे हैं ट्रेनर, तो स्टूडेंट्स जो है वो तो it will be divided. ठीक है, क्योंकि क्लास है
तो आपने बोला था नहीं, इट विल नेवर हैपन बिकॉज ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये ऐसे ही होता जाएगा, ऐसे कुछ मतलब पूरा डिटेल्स इसके बारे तो में था। इसको अगर मैं एक इसको घंटा करीब आप जो सेशन था, इट वाज अबाउट 1 hour। सी इन वेरी शॉर्ट प्रेजेंटेशन भी था इसमें। एब्सोल्युटली। अगर मैं इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लैंग्वेज में सुनाऊं तो सी लाइफ इज अबंडेंट, द वर्ल्ड हैज अबंडेंट, बहुत है, बहुत अपॉर्चुनिटी है लाइफ में, बहुत स्टूडेंट्स है, बहुत ट्रेनर्स है। योर टैलेंट हैव नो लिमिट्स ऑन सीलिंग, यू नो, नो लिमिट्स नो सीलिंग। आपको यही बताए थे आप, यही बताया था। बहुत है लाइफ में, इतना अपॉर्चुनिटी है कि सबके लिए रखा गया है। आप अगर डिजर्व करोगे तो आपको भी मिलेगा, जिसको चाहिए उसको मिलेगा, कहीं पे किसी के लिए कम नहीं है। So that was my answer. So guys, once you become consciously aware of just how powerful your thoughts are, you will realize everything in your life is exactly how you allow it to be. You know, ये important है समझना कि हम लोग कितने पावरफुल हैं। हम चाहे तो जो चीज हम सोच रहे हैं वो मेरे मुट्ठी में हो सकता है। You know, anything. अब अगर एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, सी राइट नाउ मैं चाहता हूं कि मेरे सामने चाय का कप हो, चाय का कप है, उसको मैं अपने हाथ में ले लूं, तो ये मैंने हाथ में ले लिया। तो कुछ देर पहले हाथ में लेना मेरा थॉट था, लेकिन अभी ये मेरे हाथ में है। इट इज पॉसिबल। उसके लिए मैंने हाथ को आगे किया, हाथ को लिया, सो आई डिड सम वर्क। मैं चाहता हूं कि मेरी बात सुन के ऋषिता के मुंह में स्माइल आए, मुस्कुराहट आए, देखो आ गई। ये मेरा थॉट था, अभी वो थिंग में कन्वर्ट हो गया, अभी वो हंस रही है। तो सबसे पहले कोई भी चीज जो चाहिए उसके लिए थॉट बहुत इंपॉर्टेंट है। इनिशिएटिव तो चाहिए, इनिशिएटिव भी तो चाहिए। इनिशिएटिव मींस आस्क, मतलब वो जब ये जो हाथ आप बढ़ा है वो कप के लिए, तो दैट इज एक्शन, दैट इज एक्शन। अगर मैं उस एक्शन को नहीं करता तो जितना भी मैं चाहूं वो नहीं आएगा मेरे पास। yes that's what I am trying to say. Right, action is important. Why action is important, I'll tell you. कुछ लोग नेगेटिवली फोकस करते हैं, मैं पढ़ नहीं सकता, मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं डांस नहीं कर सकता, मैं स्विमिंग नहीं कर सकता, मैं गाना नहीं गा सकता, मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता, आई कांट ड्राइव, आई कांट डू मैथ्स, यू नो, आई एम फैट। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बोलता है कि तथास्तु, जो सोचे वही होगा तुम्हारे लाइफ में। एकदम वही होता है। एवरी सिंगल डे यू मेक अ चॉइस, आपका चॉइस है। आप अगर अच्छे चीज को चाहोगे तो आप अच्छे चीज को लेके बात करो। आप इस तरफ हो, थोड़े इस तरफ आ जाओ, देखो दुनिया को यूज, देखो एक अलग नजरिया से देख सकते हो, लेकिन आपको तो अपने जगह से भी हिलना नहीं है। मैं जहाँ हूँ वही हूँ, मैं नेगेटिव हूँ तो नेगेटिव ही सही। आपको नेगेटिव भी रहना है और लाइफ में बोल भी रहे हो सबको कि भाई मैं बहुत कुछ चाहता था, मेरे को नहीं मिला। क्यों बोल रहे हो भाई? आपको नहीं मिला क्योंकि आप उठे नहीं वहां से जहां से आपको दर्द लग रहा था। आप वहीं पे बैठे रहे, दर्द को झेले, अपने को चेंज नहीं किया। उठना था, यू डिडंट डू दैट, आया ही नहीं दिमाग में। तो वो आस्क, जो पहला पार्ट था आस्क, वो इम्पोर्टेंट है। दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। एनी डाउट गाइस? बिकॉज दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट। यहाँ पे आइडिया जनरेशन, मेरे को यही अब करना है, मतलब इतना अचीव करना है। Yes, sir. You have to keep working on your goal, right? So these are the 5 games. एक बार अपने पे बिलीव करने से पहले ये 5 चीजें देख लेना। अगर आप अपने सपनों से रिलेटेड अगर बिलीफ रखते हो तो ये 5 चीजें, अपने गोल के ऊपर काम करना, काम पे फोकस करना, बाहर जाना है, हेल्थ ऑफ द जर्नी मैटर्स, मतलब आप जो जर्नी में जा रहे हो उसको एंजॉय कर रहे हो, हैंडलिंग नेसेयर्स, जो लोग आपको ना बोल रहे हैं उनको हैंडल कर पा रहे हो। प्लीज म्यूट योरसेल्फ गाइस, जो लोग म्यूट नहीं हैं। Sorry. So yes, I was talking about this. Handling naysayers and work to be deserving first. पहले काबिल बनने के लिए अपने गोल के ऊपर जाए, गोल के तरफ जाए। आप काबिल हो कि नहीं, पहले तो उसको, उस चीज को पहले क्लियर करें।
एक चीज आपने देखा होगा, कभी भी आप अगर हाईवे में जाते हो ना, तो आपको पता है कि आप कहाँ जा रहे हो, लेकिन आपको पूरी मंजिल दिखती नहीं है। लेकिन आपको जितना भी दिखता है ना, आप एकदम पॉजिटिवली उतना जाते हो। जैसे ही उतना जाते हो, आपका मंजिल और आपको दिखता है। आप जितना आगे जाते हो, आपकी हेडलाइट है ना, आपको और ज्यादा विजुअल्स देती है। सो लाइफ ही वैसा ही है। आपको लग रहा है कि सक्सेस बहुत दूर है, लेकिन आप उतना दूर देखो ही नहीं ना। आप एक मंजिल तय करो और अपने आगे आगे जाते रहो, आगे जाते रहो। आप जितना आगे जाते रहोगे, आपकी थोड़ी 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 करके आपकी मंजिल पूरी होने लगेगी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे जो भी मंजिल हो। बिलीफ दो तरह के होते हैं, एक होता है बिलीफ विद सुपरस्टिशंस और एक होता है बिलीफ विद एक्सपीरियंस। बिलीफ विद सुपरस्टिशंस का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? सर कुछ लोग होते हैं जो लोग बहुत ज्यादा पूजा करते हैं, पूजा पाठ पे जो भरोसा करते हैं, या फिर कुछ एक अलग टाइप के भी लोग होते हैं जो कुछ कुछ धर्म को मानते हैं, और फिर उनको अगर उनसे कुछ गलतियां हो जाती तो उन्हें एक दिमाग में एक आ जाता है कि अब कुछ गलत होने वाला है। जैसे बहुत सारा नॉर्मल चीज है, जैसे दूध का गिरना, या फिर मतलब बहुत सारी चीजें मैं देखी हूँ रियल लाइफ में भी। मेरी फ्रेंड खुद की है, वो शिवलिंग के बारे में बोलती है कि अगर कोई शिवलिंग घर पे रखता है तो वो अच्छा नहीं होता है उसके लिए। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं सर, तो लोग सुपरस्टिशियसली बात बिलीव करते हैं। एब्सोल्युटली राइट शिवांगी। देखो, एक चीज को अच्छे से समझिएगा इस चीज को। आपका आस्क हो गया, अभी हम लोग सेकंड में है बिलीफ। बिलीफ दो तरह का होता है, एक होता है सुपरस्टिशंस, एक होता है एक्सपीरियंस। ओके, अब इसका एक एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा। ये कबूतर को देखिए, ये एक बॉक्स के अंदर है और इस बॉक्स के अंदर एक होल है, जिस होल से उसको एक दाना दिया जा रहा है। हर 1 मिनट में उसको एक दाना दिया जा रहा है। ये बॉक्स के अंदर है, हर 1 मिनट में उसको एक दाना दिया जा रहा है। अब एक दाना जैसे ही ये कबूतर लेता है, अब वो वेट कर रहा है कि नेक्स्ट दाना कब आएगा। अब उसको तो पता नहीं ना भाई 1 मिनट क्या होता है, वो तो वेट कर रहा है कि भाई वो नेक्स्ट दाना कब आएगा। तो अब वेट करते करते ना वो रेस्टलेस हो रहा है, और वो कबूतर एक बार इस तरफ जा रहा है उस बॉक्स के अंदर, एक बार इस तरफ जा रहा है, एक बार समरसॉल्ट कर रहा है, फिर आके वेट कर रहा है कि कुछ आया कि नहीं। और ऐसा 2 बार जब उसने किया, 1 मिनट हो गया और वहां से एक दाना आ गया। अब सोचो, उसको थोड़ी ना पता है कि 1 मिनट में दाना आ रहा है। उसको लगा ओके, मैं इस तरफ जाऊंगा, मैं इस तरफ जाऊंगा, फिर 2 बार समरसॉल्ट करूंगा, और उसके बाद ऐसा मैं 2 बार करूंगा तो मेरे पास दाना आ जाएगा। तो ये जो कबूतर को लग रहा है, ये बहुतों को लगता है। बिलीफ विद सुपरस्टिशंस, नो वे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुपरस्टिशंस को बिलीव नहीं करता है। ओके, आई एम नॉट, मैं नहीं बोल रहा हूं कि नहीं होता है, मैं बोल रहा हूं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुपरस्टिशंस को नहीं मानता है, चाहे वो कुछ भी हो। सपोज मैं अपने हाथ में अंगूठी पहना हूं और मेरे को बिलीफ है कि मैं बहुत बड़ा इंसान बनने वाला हूं। मैं नहीं बोल रहा हूं कि मैं नहीं बनूंगा या ये अंगूठी काम नहीं करता है, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस चीज को नहीं मानता है। तो अब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ज्यादा मानता हूं, इसीलिए मैंने अंगूठी नहीं पहना है। और आई एम गिविंग यू टोटल गारंटी, अगर आज की डेट में मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं मानूंगा तो जरूर अंगूठी पहनूंगा, क्योंकि मेरे को And what about lucky charm things? काम करेंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करेंगे, ऐसे ही लकी बन जाएंगे आप। Okay. रखेंगे, देखो आप रखेंगे तो डबल लकी, लेकिन काम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट बिलीव्स इन एक्शन, इट बिलीव्स इन एक्शन, राइट? Any question? Have you understood this story? Okay. ये वाला एग्जाम्पल देखिए आप, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ पे एक ऑपरेशन हो रहा है, एक दिमाग का ऑपरेशन हो रहा है। इस ऑपरेशन में बहुत लोग हैं। सर्जन है जिसका 15 साल का एक्सपीरियंस है, एक है कॉमन मैन जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, हमारे जैसा इंसान, और जो थर्ड है वो फ्रेश एमबीबीएस है, जो एकदम फ्रेश अभी पास किया है।
और तीनों को ऑपरेशन करना है। सब तीनों के दिमाग में आस्क क्लियर है कि ये पेशेंट को बचाना है। तीनों का बिलीफ भी है भाई मैं इस पेशेंट को बचा लूंगा, लेकिन तीनों का बिलीफ किस चीज के आधार में है भाई? आप सोचो, सक्सेस प्रोबेबिलिटी इन दिस ऑपरेशन थिएटर किसका ज्यादा है? सक्सेस प्रोबेबिलिटी सर एक्सपीरियंस ब्रेन सर्जन का। जो 15 साल का एक्सपीरियंस सर्जन है उसका, क्योंकि वो 15 साल तक एक्शन किया, एक्सपीरियंस बनाया, उसके बाद वो बोल रहा है कि मैं इस पेशेंट को बचाऊंगा। तो उसका जो पेशेंस है, उसका जो बिलीफ है, वो बिलीफ बहुत ज्यादा है। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि एक बिलीफ पनपता है एक्शन से। आप एक्शन करोगे तो आपका बिलीफ और बढ़ेगा, आप और एक्शन करोगे तो आपका बिलीफ और बढ़ेगा। सो क्वेश्चन ये है कि आप कितना एक्शन आज के डेट में अपने सपनों को लेके दिन रात एक कर रहे हो कि नहीं, बिना रिजल्ट के बारे में सोचते हुए। दैट इज इंपॉर्टेंट। If only ask and believe could make us rich and successful, then any beggar would have become the first one to become rich. Right. So guys, अगर सिर्फ सोचने से और भरोसा करने से ही हम अमीर हो जाते, तो जो बाहर कभी कभी भीख मांगते हैं वो भी तो आस्क करते हैं ना, मेरे को 10 रुपया दो, 20 रुपया दो। और बिलीफ अगर वो भी रखेंगे नहीं मैं भी रिच बनूंगा, नहीं बन पाएंगे, क्योंकि वो बिलीफ के बेस में एक्शन नहीं है, वो लोग कुछ कर नहीं रहे। एक्शन नहीं होगा तो आस्क से कुछ फायदा नहीं है। डोंट वरी, यू डोंट हैव टू डू हार्ड वर्क। अब बात ये नहीं कि भाई आपको हार्ड वर्क करना है। हार्ड वर्क, बहुत लोग बोलते हैं सर बहुत हार्ड वर्क करना है। हार्ड वर्क ही तो नहीं करना है। यू हैव टू रैदर बी मोर सॉफ्ट टुवर्ड्स योर गोल। अपने गोल के ऊपर सॉफ्टनेस रखना जरूरी है, हार्ड वर्क नहीं। आई थिंक यू हैव टू लव योर वर्क, यू हैव टू बी सॉफ्ट टुवर्ड्स योर वर्क। Remember, when a human is born, his body is soft and fresh. Soft and weak is a companion of life. जब इंसान का जन्म होता है ना तो वो सॉफ्ट रहता है, उसी से पता चलता है दैट इज लाइफ। लेकिन जब इंसान मर जाता है ना, his body becomes stiff and hard. Stiff and hard is companion of death. So ज्यादा हार्ड वर्क करोगे ना तो आप रूड बन जाओगे। आपको अगर मंजिल मिल भी जाती है ना तो आपका जो एटीट्यूड है वो काफी हार्ड हो जाएगा, आप बहुत रूड हो जाओगे। आपको कोई पूछेगा ना कि भाई कैसे सक्सेस मिला, आप बोलोगे बहुत हार्ड था भाई, बहुत हार्ड था। क्यों बोलना यार, बहुत इजी था, मैंने कर लिया, तुम तो और अच्छे से करोगे। We have to be very soft towards life. ये देखो कितना अच्छा एग्जाम्पल है। When you do not, when you do your part well without questioning, nature does its work without failing. एक बच्चा जब जन्म लेता है ना, जब माँ के पेट में रहता है, जब उसका उम्र सिर्फ 1 महीना होता है, तब वो क्वेश्चन नहीं करता नेचर से कि भाई मेरा 1 महीने का और 9 मंथ का तो मतलब पूरा ही शेप अलग है। क्या मैं 9 मंथ का जो शेप दिख रहा है, क्या मुझे वो 9 मंथ का शेप मिलेगा? मेरा शेप तो टोटली अलग है। लेकिन वो क्वेश्चन नहीं करता है, वो प्रोसेस में भरोसा रखता है, वो लाइफ को भरोसा करता है। उसको पता है कि अगर मैं प्रोसेस में हूं तो एक ना एक दिन 9th मंथ में मेरे को पूरा बॉडी का शेप मिल जाएगा, मेरा नाक आ जाएगा, मेरे कान आ जाएंगे, सब आ जाएंगे। तो वही बात है, अपने को भरोसा करो, अपने प्रोसेस को भरोसा करो, यूनिवर्स को भरोसा करो। सब कुछ अपने टाइम से सब कुछ होगा। जितना हम लोग डाउट करेंगे उतना क्वेश्चंस होगा। डाउट will basically kill our dreams. So when wherever you are today, you deserved it, you thought of it, made your genie did it for you. So now you are happy or you want change. If you want change, ask your genie to do it for you again and again and believe it. So जो भी आज तक आपको मिला है ना, आपने कहीं ना कहीं चाहा था या आप डर रहे थे कि कहीं आपको वो ना मिले, और आप अभी उसको जी रहे हो।
सो आगे भी वही होगा जो आप चाहते हो या आपको जिस चीज का डर लगता है ना कि वो ना हो, उसी का होने का चांसेस ज्यादा है। तो इसीलिए आस्क इट, बिलीव इट। अब बाकी रहा हमारा जो लास्ट पार्ट, रिसीव। गाइस, इफ वी आस्क, we will believe, ultimately we will receive. So if you can see it from your mind, अगर आप अपने माइंड में देख रहे हो कि आपको क्या चाहिए, you can hold it in your hand. एक ना एक दिन वो आपके हाथ में होगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या आप अपने दिमाग में उसका पिक्चर बना रहे हो जो आपको चाहिए? दैट इज इम्पोर्टेंट। आप अगर पिक्चर बना ही नहीं पा रहे हो अपने दिमाग में, तो कभी यहाँ पे नहीं जा सकते। यू कैन नॉट टच व्हाट यू वांट। सो एज यू विल होल्ड इट इन योर हैंड वन डे, तो आपको जब लग ही रहा है कि भाई एक ना एक दिन जब मुझे वो चीज मिल ही जाएगा, then why don't you feel it's already there even when you are waiting? इस चीज को अच्छे से समझे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको पता ही है कि एक ना एक दिन वो मुझे मिल जाएगा, तो आज आप फील क्यों नहीं कर रहे हैं कि चलो भाई एक्ट करते हैं कि मेरे को मिल गया, तो कैसा रहेगा मेरा लाइफ, कैसे मैं बात करूंगा, कैसे मैं चलूंगा, कैसे मैं रहूंगा। यू नो, योर एटीट्यूड विल चेंज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत लोग बिलीव करते हैं, बहुत लोग आस्क करते हैं, लेकिन हमेशा डाउट रखते हैं, यार मुझे नहीं लगता इतना इतना करने के बाद भी मेरे को मिलने वाला है। दैट इज बेसिकली सैबोटेजिंग योर ड्रीम। दैट वो आपके ड्रीम को किल कर रहा है। आप आस्क करो, बिलीव करो और सोचो, क्या पता मेरे को मिल गया है तो मैं कैसे रिएक्ट करूं लोगों के साथ। जो भी मुझे चाहिए मुझे मिल रहा है अभी मेरे लाइफ में। यू नो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेजोनेट विद समथिंग यू वांट इन लाइफ। जो चीज भी चाहिए ना, उसको बोलो, उसको देखो, उसको फील करो। अगर आपको अच्छा फील करना है तो अच्छा फील करो, देखना और अच्छा फील करो। अगर आपको अच्छा देखना है तो अपने नजरियों को चेंज करो। अच्छा देखेंगे ये सोचो, आपके सामने कुछ अच्छा चीज ही आएगा। आप हमेशा सोचो कि कुछ अच्छा ही सुनने को आएगा, आपको अच्छा दिखेगा, अच्छा सुनने को आएगा, अच्छा आप फील करोगे। रेजोनेट विद समथिंग यू वांट इन लाइफ। गाइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट एक्ट एज इफ यू हैव ऑलरेडी रिसीव्ड। जब आप आस्क करते हो, बिलीव करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू नो, इमेजिन दैट यू हैव ऑलरेडी रिसीव्ड। ये दिमाग में क्रिएट करना कि मुझे ऑलरेडी मिल चुका है, सो अभी मैं कैसे फील करूं, ये फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। यू नो, इसीलिए मैं बोलूंगा, लाइक शिवांगी सेड कि मुझे 5 लाख एक दिन सब्सक्राइबर होंगे, लेकिन मैं उनको, शिवांगी को आज बोलूंगा कि उसे आज ऐसे सिंग करना है, ऐसा फील करना है कि एज इफ 5 लाख सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी हैं। ये इंपॉर्टेंट है। डोंट वेट कि कब 5 लाख होगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा कब 5 लाख होके 10 लाख हो जाएगा। सर मुझे फील होता है बीच बीच में कि आई एम डूइंग माई बेस्ट और एक टाइम तो होगा ही, होना ही है, होना है। इमेजिन दैट आई ऑलरेडी हैव, तो कैसा फीलिंग होगा ये सोचो। दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। Okay. So guys, see a dream, protect the dream and manifest the dream. This is very important. आपका सपना है भाई, आपको प्रोटेक्ट करना है उसको। कैसे प्रोटेक्ट करोगे? कोई आके बोल दिया नहीं कर सकता, छोड़ दिया, ये प्रोटेक्शन नहीं है। आप चाहते हो, आपके पेरेंट्स नहीं चाहते, छोड़ दिया, ये प्रोटेक्शन नहीं है। प्रोटेक्शन तभी होगा जब आप आस्क करोगे, बिलीव करोगे और अल्टीमेटली उसको रिसीव करोगे। So you have to manifest your dream. This manifestation is very much important. Finally, when you get what you urge, don't settle, still focus on action. और अगर जब मिल जाएगा ना चीजें, तब बैठ मत जाना और आगे बढ़ना और चीजों के बारे में सोचना कि और भी लाइफ में क्या क्या हो सकता है। All great people knew this secret. Now you understand it too. The more you will see it, the more you will understand. लॉ ऑफ अट्रैक्शन का आज का जो क्लास था वो काफी बेस था।
अब आप देखना, इतना दिन बहुत लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसके बारे में आप लोगों को पता नहीं थी, अब आप देखोगे आपके लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन कितना काम करेगा. यू विल सी मोर लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्ड. अभी ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत जल्दी आप कहीं ना कहीं जरूर देखोगे. दिस इज सो पावरफुल. So guys, be patient. Your blessings and dreams are coming into your life. Just keep believing. So अपने लाइफ में अपने जिनी को बुलाओ और उसको बोलो, भाई मेरे को क्या चाहिए, जो चाहिए अल्टीमेटली मेरे को वो मिलने वाला है. करना क्या है, बस 3 स्टेप है. आस्क, बिलीव एंड रिसीव. आस्क स्पेसिफिक करना है, जब बिलीव करे तो एक्शन करे, उसके बाद बिलीव जो आएगा वो मेन बिलीव है. और रिसीव, सोचे कि मेरे को ऑलरेडी मिल गया तो भाई आई एम डूइंग गुड. ये 3 चीजें अगर हमारे पास हो, दिस इज अ टूल टू अप्लाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन एनीबडीज लाइफ. चाहे आप रिलेशनशिप में यूज करो, करियर में यूज करो, वेल्थ क्रिएशन में यूज करो, कहीं पे भी यूज करोगे, यू विल बी गेटिंग अ वेरी गुड रिजल्ट्स.